This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Okay, so now this is been under recording. Okay, so we Okay. will start with the basic of project and planning, right? Okay. So the first thing, you know, that when we say about project and planning is what is project and what is planning. Okay, so mainly many people, if we ask this question that what is project, many people not able to answer in a right way. So the project is if we talk about project, the project is a group of activities having definite start and definite finish. This is the definition which is given by PMI. Okay. Yeah, it's So a like temporary endeavor which we have to finish it's within a time frame. right. It's a temporary endeavor which is undertaken to create a unique product and which has limited resources and limited budget and should finish within the stipulated time. That's right. Okay. Right, sure, right. Okay, so project planning. So in project planning, we have two methods which we use. One is PERT and one is CPM. So PERT method we will not going to use, and if required in the end, I will tell you about PERT method also. But in general, we means when we talk about planning, we only as of today in older days we supposed to use PERT also, but now we only go for CPM methods. CPM methods. So our Primavera is also based on CPM. So PERT initially was known as Program Evaluation and Review Technique. Okay, and CPM is known as Critical Path Method Technique. So we will be using critical path in throughout our planning in Primavera. Even if we do manually anywhere, we will use CPM only. Okay, so what is CPM? So CPM is a graphical representation of sequence activities of the work necessary to execute a construction project, which shows interrelation and interdependencies of the element. So whatever there in the project is either interconnected with each other or there is some type of dependencies between each department. So no department will work alone. So if every department is connected, then only we can have a critical path. So when this approach was created, so this approach was created by US Navy in 1958. So they were the first who developed this while they were developing Polaris missile systems. Okay, so but after that it came into construction industry. So mainly CPM method using Primavera is mainly used in a construction methods, construction profession. If we talk about like there are other methodologies also, like there is Prince2, and then there are like Scrum, Agile technologies. Those are mainly famous and mainly used in an IT industry because those are the recently developed methodologies. But Agile is recently developed, right. yes, and this is a very old methodology. So from old days, it's been used in because IT has come recently. So they have developed their own methodologies. And in this construction industry is very old. So they are using their old developed methodologies. Okay, so in addition, many of the practices in CPM scheduling have been shaped by result of many construction claims. So initially, initial CPM जो बना हुआ था at the time of US Navy, that was something different. But even over the years, उसमें modification करते 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 उसको एक नया form हमने ले लिया है in order to get it suited in our construction industry. So the case law that has resulted from those claims has often guided how schedulers now approach their work. तो generally जो लोग Primavera पे काम करते हैं उनको हम schedulers बोलते हैं, जो especially only work on Primavera. उनको हम schedulers बोलते हैं. प्लानर्स जो होते हैं वो शेड्यूलर से अलग होते हैं. प्लानर्स वो होते हैं जो पूरा प्रोजेक्ट प्लान करते हैं कि हम प्रोजेक्ट करेंगे कैसे. शेड्यूलर्स वो होते हैं जो उस प्रोग्राम को प्राइमेरा में डालते हैं. क्योंकि इंडिया में क्या होता है, डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर डिफरेंस है. अगर कोई बोलता है प्लानर चाहिए और कोई बोलता है मुझे शेड्यूलर चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस है. वो इंडिया में नहीं दिखता. इंडिया में तो प्लानिंग इंजीनियर एंड प्लानिंग मैनेजर दो ही नाम हमको पता रहता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है. बाहर प्लानर है, देन प्रोजेक्ट प्लानर्स अलग होते हैं, एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजर्स अलग होते हैं, देन कंट्रोल्स मैनेजर अलग होते हैं. हर चीज के लिए एक डेफिनेशन है अलग अलग.
बाहर Hmm. इंडिया के. Now moving to another slide, time management. Now what happened, the main thing that covers in our project planning and also in Primavera is the time management. So it's, we are always talking about time. It's all about time and resources, but our first thing is time. Resources come secondary. So time management can be broken into two parts. One is how you plan and how you execute. So this is given by CMAA, that is Construction Management Association of America University in 2011. They have said that proper planning of the project schedule, effective use of team members, resource, and managing risk and delays are crucial to have a good outcome. For construction projects, ultimate success depend on the continuous balance of project resource, cost, and schedule. इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी बताई है. कोई भी अगर पूछे कि प्रोजेक्ट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमेशा फोर पार्ट में डिवाइड होती है. आइडेंटिफाई, प्लान, execute, and close. Identify is the first thing in which we identify what is the project statement. फिजिबिलिटी स्टडी भी इसी में की जाती है, डीपीआर भी इसी में बनाए जाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के. फिर उसी में फाइनल किया जाता है कि क्लाइंट की तरफ से कौन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा. वो सब इसी आपके आइडेंटिटी पार्ट में किए जाते हैं. प्लानिंग पार्ट में क्या होता है, जब हम लोग उसके लिए प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, और उसके लिए बजट बनाते हैं कि पैसा कितना लगेगा इसमें, डिटेल बजट. और फिर हम उसमें क्वालिटी प्लान लगाते हैं, सेफ्टी प्लान बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं. तो वो सब प्लानिंग में आता है. एग्जीक्यूट मतलब जब हम लोग जाके साइट पे उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं. उस टाइम पर जो मेन चीज हो रही होती है वो एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, मॉनिटरिंग चल रही होती है, और करेक्टिव एक्शंस चल रहे होते हैं, डिले होता है, कैचअप प्लान्स बनते हैं, स्टेटस रिपोर्ट बनती है, ये सब हो रहा होता है. और एंड में क्लोजिंग होता है जिसमें हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं. एक प्रोजेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट बनती है, एक क्लोजर रिपोर्ट बनती है जिसमें बताते हैं कि हमें प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, किस तरीके से सक्सेसफुल रहा, हमारी लर्निंग्स क्या रही उस प्रोजेक्ट से, वो सब उसके अंदर निकाला जाता है. नाउ कमिंग बैक टू प्रोजेक्ट प्लानिंग. नाउ इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, जस्ट लाइक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, we have schedule life cycle also. So first we will go through what is schedule management. So schedule management is critical for three main reasons. First of all, time has no flexibility. ठीक है, इफ वी हैव 2 years प्रोजेक्ट तो वो 2 years में खत्म होना है. वो अलग बात है कि वो देयर आर मेनी गिवन रीजंस जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है इट फिनिशेस आफ्टर 1 year 1.5 year, वो आते हैं प्रोजेक्ट के संग. लेकिन जो फर्स्ट प्रोग्राम बनता है वो हमेशा स्टार्ट और फिनिश के बीच में बनता है, जो हमें मिले हैं क्लाइंट की तरफ से. डिलीवरिंग प्रोजेक्ट ऑन टाइम इज चैलेंज एंड प्रायोरिटी. प्रोजेक्ट क्लेम्स ऑफ्टन सेंटर अराउंड शेड्यूल इशू. अब इसमें सबसे मेन क्या है, प्रोजेक्ट की जितने भी क्लेम बनते हैं ना, वो क्लेम आप जस्टिफाई तभी कर सकते हो जब आपके शेड्यूल के अंदर वो चीजें दिखें. तो और प्रोजेक्ट क्लेम्स ऑफ्टन सेंटर अराउंड शेड्यूल इश्यूज. तो शेड्यूल आपने कैसे करा अपने प्रोग्राम, उसी के चारों तरफ आपके क्लेम्स भी घूमते रहते हैं. जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जब यहाँ पर जयपुर मेट्रो में था मैं, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने जब इनिशियल प्रोग्राम बना के क्लाइंट को सबमिट किया, तो उसके बाद हमारा डिले होने लगा प्रोजेक्ट. तो डिले में क्या हुआ कि जो कास्टिंग यार्ड की लैंड थी वो डिले हो गई, और उसकी डिले हमने बोला कि ये डिले हो गई है तो हमें क्लेम मिलना चाहिए इसका. हमने क्लाइंट को बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस सब कुछ लगा के दे दिया. क्लाइंट ने उधर से रिप्लाई करा कि मुझे ये दिखाओ कि तुमने अपने शेड्यूल जो सबमिट किया था, क्या उसमें ये क्रिटिकल पाथ पे थी या इसमें फ्लोट था. तो जिस बंदे ने वो शेड्यूल बनाया था, उस बंदे ने उस टाइम पर ये नहीं सोचा था कि कास्टिंग यार्ड को क्रिटिकल पाथ पे दिखाना है, और कास्टिंग यार्ड में उसने फ्लोट दिखा दिया था अराउंड 200 दिन का. तो डिले हुआ 150 दिन का, उसने दिखाया फ्लोट 200 दिन का. तो उसमें क्लाइंट ने बोल दिया कि जब तुम्हारे शेड्यूल में ही ये क्रिटिकल पाथ पे नहीं था तो मैं तुम्हें किस बात का पैसा दूंगा. तो वो मतलब उस पर काफी बहस हुई थी. वो शेड्यूलर को भी बुलाया गया था, तुमने क्या किया, ये तुमने किसको क्यों नहीं रखा क्रिटिकल पाथ पे. तो ये चीजें होती हैं. तो प्रोजेक्ट क्लेम्स ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड आवर शेड्यूल. नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ बेसलाइन एंड अपडेट शेड्यूल इज बोथ गुड एंड बैड, सिंस दैट दे बिकम द बेसिस फॉर लीगल इश्यूज. तो बेसलाइन जो होती है और जो जितने भी अपडेट होते हैं, ये सारे के सारे जब हम लोग जाते हैं आर्बिट्रेशन में या नेगोशिएशन में, या फिर आगे क्लेम्स में हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं, उस टाइम पर यही चीजें हमको एज अ एविडेंस दिखानी होती है. तो नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्ट्स यूज प्रोजेक्ट शेड्यूलर्स एज अ टूल टू डेमोन्स्ट्रेट टाइम रिलेटेड एंटाइटलमेंट्स. तो क्योंकि मैंने एक दो आर्बिट्रेशंस और मीडिएशन में मैंने आई एम अ प्रोफेशनल मीडिएटर आल्सो, तो मैंने एक दो अटेंड करे हैं ये सेशंस इनके. तो उसमें
एकदम वो लोग बिल्कुल डेप्थ में जाके ना एक एक चीज चेक करते हैं शेड्यूल के अंदर कि आपने पहले क्या बनाया था, अब क्या बना है, क्यों चेंज हुआ, क्या हुआ उसकी वजह से। नाउ प्रोजेक्ट प्लानिंग, But they have that much expertise to check scheduler. सी उसमें जो 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 चेकर होता है उसको एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, वो आपके शेड्यूल के अंदर नहीं घुसता, वो सिर्फ आपसे वो क्या करता है, उसके संग एक प्लानर बैठता है, वो बोलता है कि मुझे ये निकाल के दिखाओ कि बेस लाइन में ये एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे थी कि नहीं थी। अब उसका जो संग में प्लानर बैठा है वो उसको बताएगा कि ये क्रिटिकल पाथ, उसको जरूरत नहीं है नॉलेज की, जो चेकर है। चेकर तो वो 50 इयर्स का भी हो सकता है, 40 इयर्स, बेचारे को पता ही नहीं कि प्राइमेरा क्या होता है, लेकिन ही हैज दैट IQ, क्योंकि उसने वो पढ़ाई करी आर्बिट्रेशन की, और उसने वो शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा। क्योंकि क्या होता है जनरली, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो उसमें कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड के लोग ही आर्बिट्रेटर बनते हैं, तो एक्चुअली उनको आइडिया तो होता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, लेकिन उसके एविडेंस पुट करने के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते, तो उनके लिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर से एक प्लानर आ गया और एक प्लानर क्लाइंट से आ गया, तो अब वो दोनों बैठेंगे और वो उसको खोल के दिखाएंगे कि ये क्रिटिकल पाथ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो सबको सामने ही बैठ के होता है बिल्कुल, तो वो बताता है देखो कि सर ये एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है, हमारे बेस लाइन में भी थी, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, तो फिर क्लाइंट वाला वो सामने दिखाता है तो वो लिख लेता है हाँ कि दिस एक्टिविटी वाज ऑन क्रिटिकल पाथ। तो इस तरीके से वो पूरा रिगरस वो होता है, पूरा इसमें चेकिंग होती है, चेकिंग होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो बोलता है कि अगर ये क्रिटिकल पाथ पे थी और ये डिफर हुई तो क्या तुमने लेटर लिखा था क्लाइंट को, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर का प्लानर ढूंढता है सारे लेटर, हाँ सर ये देखिए हमने लेटर लिखा था, इनको बताया था कि देखो यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, तो फिर वो क्लाइंट से पूछता है क्या तुमने इसका रिप्लाई दिया था विद इन 7 डेज। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कर रहे हैं, अगर वो फिटिक फॉलो कर रहे हैं तो उनको विद इन 14 डेज रिप्लाई देना होता है कॉन्ट्रैक्टर के लेटर का, कि आपने रिप्लाई दिया। अगर उन्होंने दे दिया 14 डेज तो ठीक है, और अगर उन्होंने 20 डेज बाद दिया तो अब उस चेकर के ऊपर है कि वो जो वहां पर चेकर बैठा है कि वो क्या डिसीजन लेगा, वेदर वो उसको वैलिड मानेगा या नहीं मानेगा वो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, लेकिन इसमें जो है मेन चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके, प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये दोनों हैंड ही चलते हैं दोनों चीजें। तो CPM शेड्यूलिंग हैज द फॉलोइंग मेजर एडवांटेजेस। हाँ जी, yeah, you're right. Planning and project contract, because contract has to write a letter, and planning has to give the tools or the the situation where the particular activity is on critical path. So both has to compatible to each both other. yes that's right, both the people has to go through the full contract। ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी एक ने पढ़ लिया, दोनों को पूरा कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि व्हेन वी हैव टू सबमिट आवर शेड्यूल विद इन 7 डेज क्या रिप्लाई करना है, विद इन 14 डेज क्या रिप्लाई करना है, वो दोनों को फुल नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। CPM शेड्यूलिंग हैज द फॉलोइंग मेजर एडवांटेज। एडवांटेज क्या है CPM यूज करने के? That is the dependency and interdependencies of all activities. Clearly आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है, demonstrate how a impact or the more activity impact the other activities. आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पंखा कम कर लेता हूँ, सकता है पंखे की वजह से। हाँ अभी आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ अभी ठीक है। हेलो, अभी ठीक आ रही है? हाँ जी, आगे चलते हैं। So CPM scheduling provides an accurate, अब ठीक आ रही है, okay, provides an accurate and detailed picture of the forecasted completion dates of the various project activities. It can be used to manage resource cost associated with each activity, identifies the activities that are critical to timely completion of the project and identify the shortest time in which a project can be completed. तो ये सारे advantages हैं CPM यूज करने के। Benefits of using CPM scheduling बचे हुए क्या है? Is to provide a realistic workable schedule created during the planning stages, but actively used to manage the project during construction। तो क्या होता है, ये प्लानिंग भी देता है और कंस्ट्रक्शन टाइम पर उसको रियल टाइम में हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। Crucial to a workable schedule is a proper logic schedule, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Good realistic duration that are based on accurate resource projections। तो सेकंड चीज क्या है कि जो ड्यूरेशन डलती है शेड्यूल के अंदर वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपने मन से करा यार ये एक्टिविटी कितने दिन में खत्म होगी, 20 दिन डाल दो, ऐसा नहीं है। हर एक्टिविटी का हमें बैकअप देना पड़ता है कि हमने उसको कैसे डेवलप करा, उसकी अगर एक पाइलिंग रिग काम कर रही है तो उसकी टाइम साइकिल क्या है,
तो उसकी टाइम साइकिल से पर पाइलिंग का टाइम निकलेगा। तो हमको बताना पड़ता है कि हमने इस तरीके से लिया है। अनरियलिस्टिक जो टाइम है हम किसी भी एक्टिविटी में नहीं डाल सकते। Use of the critical path methodology identifies the project critical path, give the list of activity completion date which must be met in order to finish the project on time. Now, overview of Primavera P6. Now, P6 क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है, is a powerful software, interlinked software system designed to create, analyze the CPM schedule used in managing construction projects. P6 is built on SQL, Oracle and SQL Server. तो जब हम प्राइमेवेरा इंस्टॉल करते हैं तो हम संग में SQL सर्वर भी उसमें संग इंस्टॉल करते हैं, तभी वो इंस्टॉल होता है, which allows to create a global codes, resource and to link multiple schedule together. P6 uses standard window interface to make a user easy and to manage multiple large scale project at once. तो हम प्राइमेवेरा के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट एक बारी में डाल सकते हैं और वो अलग अलग फील्ड के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही फील्ड के हों। Now the project schedule needs an accurate input as possible. तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि जब हम बेसलाइन बनाते हैं तो हमें हर चीज का बैकअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर ड्यूरेशन चेंज होगी तो हमें क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि हमने पहले 20 दिन क्यों लेते और अब 30 दिन क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए इन्होंने लिखा है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम कुछ भी ड्यूरेशन डालेंगे तो वो बाद में कुछ भी ड्यूरेशन निकाल के देगा, हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कुछ भी। Identify interface point between contractor and subcontractor well as milestones. तो प्राइमेवेरा या प्लानिंग में सेकंड चीज होती है बनाने के बाद इज द माइलस्टोन्स। जो की माइलस्टोन होते हैं प्रोजेक्ट में 5, 6, 7, 8, उनकी हम लोग उन माइलस्टोन्स को हम डालते हैं प्रोग्राम में, और सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं घूम के उन माइलस्टोन से कनेक्ट हो रही होती हैं। Represent a work plan in progress, completed and future in a systematic and coordinated manner. Provides team leaders with an effective tool to manage the project. तो अगर समझिए 4 टीम लीडर हैं तो हम उस प्राइमेवेरा के प्रोग्राम में से चारों को अलग अलग से उनका प्रोग्राम दे सकते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, वीकली ये काम है, तुम्हारा मंथली ये काम है, तो वो अपना मैनेज कर सकते हैं पूरा काम। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिमेंट्स। तो हमारे पास go back to the previous slide. Yes. Represent a work plan in progress, completed in future in a systematic and coordinated way. Yeah, okay. हाँ, मतलब आपने जो वर्क प्रोग्राम बनाया है उसमें क्या प्रोग्रेस हो गई, कितना कंप्लीट हो गया, और आने वाली एक्टिविटीज जो हैं वो कौन सी हैं और वो कैसे लिंक हैं एक दूसरे से। Correct, पूरा एकदम कोऑर्डिनेटेड मैनर में दिखाता है। ओके, प्रोजेक्ट एलिमेंट्स। तो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट एलिमेंट्स होते हैं जिसके चारों तरफ पूरा प्रोजेक्ट ही घूमता है एक्चुअली। दैट इज शेड्यूल, कॉस्ट एंड रिसोर्स। यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल लगा दिया है क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं शेड्यूल की। जनरली ऐसे होता है आपका यहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो उसमें रहता है आपका स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। यहाँ पर इन्होंने बताया है क्योंकि शेड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो शेड्यूल, कॉस्ट एंड रिसोर्स। जो शेड्यूल का मतलब हो गया एक तरीके से टाइम, कॉस्ट तो कॉस्ट ही है, और रिसोर्स हो गई जो हम लगाएंगे प्रोजेक्ट पे। ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारा इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एलिमेंट्स। So project scheduling is one of the key factors that affect and contribute to project success or failure. The interrelated and delicate balance of cost, resource and schedule will affect all aspects of construction project. If one of the key element is affected, over budget, short of resource or delayed, the other 2 elements may be affected. तो इसमें अगर इसमें कोई भी एक अगर में दिक्कत होती है तो वो दूसरे को अफेक्ट करता ही करता है, इसलिए ये ट्रायंगल में दिया हुआ है। अगर एक दिक्कत करेगा तो ट्रायंगल नहीं रहेगा, फिर ये इधर उधर खिंच के ये वो क्या कहते हैं, डिसबैलेंस ट्रायंगल हो जाएगा। डिसबैलेंस ट्रायंगल हो जाएगा। हाँ। ओके, नाउ शेड्यूलिंग साइकिल। नाउ जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल थी, ऐसी शेड्यूलिंग साइकिल भी है। उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, प्लान, परफॉर्म, मॉनिटर एंड मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के बाद दोबारा से हम प्लान पे आ जाते हैं। तो हम यही ऐसे ही चलते रहते हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। Throughout the project, yes. हाँ, throughout the project यही काम करते रहते हैं हम लोग। तो the project schedule is a living document. Once created and executed, must continue to be monitored and updated to reflect the true conditions of the project at all times. The scheduling cycle is therefore continuous. The 4 stages of scheduling cycle are plan, perform, modify, monitor and modify. After modification, the schedule may need to be replanned, thus starting the cycle again. अब प्लान में हम लोग क्या क्या करते हैं,
तो प्लान मतलब सबसे पहला स्टेज है, तो उसमें क्या करते हैं, स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करते हैं कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसमें से माइलस्टोन्स निकालते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स निकालते हैं, फिर WBS बनाते हैं हम लोग उसका। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन OBS बनाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, फिर एक्टिविटीज बनाते हैं, फिर उनको रिलेशन देते हैं आपस में, फिर क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन रिसोर्सेज को, उन एक्टिविटीज को रिसोर्स असाइन करते हैं, फिर उनके ऊपर रिस्क एनालिसिस करते हैं कि भाई जो हमने रखी है रिसोर्स, कहीं के ऊपर कोई रिस्क तो नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है सारी रिसोर्स। देन रिफाइनिंग शेड्यूल एज नीडेड, फिर हम जैसे ही उसको बनाते जाते हैं हम उसको रिफाइन करते जाते हैं कि हमने पहले कंसिडर किया था कि ये था, अब हमने कंसिडर किया नहीं, अब हमें ज़्यादा क्लियरिटी हो गई है, अब हम इसको रिफाइन कर लेंगे। Where is the बेसलाइन शेड्यूल duration? बन, When we हाँ calculate the ड्यूरेशन, duration. देखिए ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये मतलब ऑर्डर में नहीं है कि हम पहले ऐसे ऐसे करते हैं, ये तो इन्होंने सिर्फ बताया है कि प्लान के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बताया कि यही सीक्वेंस है इनको ऊपर नीचे करने का, ठीक है। तो जब आप क्रिएटिंग एक्टिविटी व्हेन एंड वेयर, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद सेकंड थिंग होती है उसकी ड्यूरेशन डालना, ड्यूरेशन डालने के बाद आप लिंकिंग करते हैं एक्टिविटीज की। तो क्रिएटिंग एक्टिविटी, देन उनको ड्यूरेशन असाइन करना, देन उनकी रिलेशनशिप देना आपस में। जब हम रिलेशनशिप दे देंगे आपस में तो हम क्रिटिकल पाथ भी देखेंगे। First we identify the activities, then बिल्कुल we calculate the we need the resources, or we need the data, how to identify, how to calculate the estimate duration हम for पहले this ड्यूरेशन ही निकालते हैं। activity. ड्यूरेशन हम उस समय, हम जब प्लान बनाते हैं तो हम मानते हैं कि एवरीथिंग इज आइडियल, हमें सब कुछ इजीली अवेलेबल है, तब हम लोग तब प्लान करते हैं। फिर जब प्लान बन जाता है तो हम बोलते हैं कि ये एक्टिविटी को, I'm questioning only the thing, like we have like 1000 meter cube concreting. So how much time is required for that? How we'll calculate that? That's why we need the estimation of duration. एस्टिमेशन, हाँ एस्टिमेशन ऑफ ड्यूरेशन, वो तो आपको कह रहा हूँ, जब हम क्रिएटिंग एक्टिविटी जब क्रिएट कर लेते हैं, उसके एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद हम उसमें जो ड्यूरेशन देते हैं, और ड्यूरेशन जो कैलकुलेट होती है वो इस समय रिसोर्स के ऊपर ही होती है, लेकिन हम रिसोर्स असाइन नहीं करते उसको उस समय, हम सिर्फ बैकअप में कैलकुलेट करके बोलते हैं कि अच्छा इतने स्क्वायर मीटर एरिया है, हमें एक्सकेवेशन करना है, इतना एक्सकेवेटर लग जाएगा, एक एक्सकेवेटर इतना निकालता है तो 3 एक्सकेवेटर से हम कर देंगे, ड्यूरेशन आ रही है 10 दिन डाल दो, पर हम उस समय असाइन नहीं करते हैं उसको, हम ड्यूरेशन डाल देते हैं, रिलेशनशिप दे देते हैं उसको, क्रिटिकल पाथ देखने के बाद फिर हम उसको रिसोर्स असाइन करते हैं। रिसोर्स हम सबसे एंड में असाइन करते हैं, ये देखने के बाद जब सब कुछ हम आइडियल मानते हैं कि 3 एक्सकेवेटर अवेलेबल होंगे, 2 कंक्रीट प्लांट हमारे पास, वो कंक्रीट पंप होंगे, प्लस हम बूम प्लेसर भी मंगवा सकते हैं, ये हम पूरा आइडियल लेके चलते हैं। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पता होता है कि 3 एक्सकेवेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक दूसरे प्रोजेक्ट पे अटका हुआ है, पहले वाला अभी रिपेयरिंग चल रहा है, तो एक ही अवेलेबल है। Yeah, no, that is correct. But what I'm asking is in the beginning when we assign the duration, so we need to have the scope of work, like how much quantity we are going to execute. Like as you said, that 1000 meter cube excavation we have to have, right? So for this 1000 meter cube excavation, okay, we are having 3 excavators. So how many days we will take to complete this job? Right. So we will. That's what we need. So we need to use the productivity data for this, and then see how much duration we are. Now this is the next step. What you are telling, that once we finalize this, then in the next step, like as you said, that we have to prepare this critical path, and then we will assign the correct resources, whether we really have 3 excavator or we have to use only 1 excavator. If 1 excavator, then the duration will increase. Right. So when you are absolutely right, when we assign the activity duration, उससे पहले हम BOQ कैलकुलेट करते हैं, BOQ के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। Yes, BOQ तो बनाना so we have to assign, है। so that means when we identify the activities as per the breakdown, against those activities we have to give the quantity BOQ against them. Then we will calculate the duration, what is the estimated duration, and later on, based on the existing resources, we will do the permutation combination, whether this we are going more than the our total contract duration or within the contract duration.
something like that. राइट दैट्स राइट। तो बीओक्यू Okay. कैलकुलेट इंडिया में क्या होता है, बीओक्यू कैलकुलेट कभी कभी प्लानिंग वाला ही क्वांटिटी सर्वेयर भी होता है और प्लानिंग इंजीनियर भी होता है। कभी कभी क्वांटिटी सर्वेयर अलग से भी दे देते हैं कि भाई तुम प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तुम क्वांटिटी कैलकुलेट करना शुरू कर दो। कभी In कभी India, क्वांटिटी सर्वेयर भी होता normally है। planning engineer himself हाँ calculates the quantity and he only राइट put the duration. Everything he will do. यस इन इंडिया एवरीथिंग इज प्लानिंग इंजीनियर विल डू एवरीथिंग, दैट्स राइट। Correct. बिल्कुल, लेकिन आउटसाइड इंडिया प्लानिंग इंजीनियर विल ओनली मार्क आउट द स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क भी वो अकेला नहीं करेगा, दैट स्कोप ऑफ वर्क के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर उसको हाँ बोलेगा कि हाँ दिस इज द स्कोप ऑफ वर्क, देन कंस्ट्रक्शन मैनेजर, देन प्रोजेक्ट मैनेजर, इतने लोग हाँ बोलेंगे तब वो फाइनल होता है। और देन दे हैव अनदर डिपार्टमेंट फॉर क्वांटिटी सर्विंग का डिपार्टमेंट ही होता है बाहर, तो एक QS उसमें department is different department. They will give the quantity यस according to he will simply ask these are the activities, these are the scope of work, calculate, give us the quantity against it, and they will get the राइट quantity, and then based on that productivity data norms, he will calculate the duration, and that's how they will prepare the schedule. यस 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 दैट्स राइट। इवन क्वांटिटी डिपार्टमेंट के संग वहां पर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट भी होता है। तो एवरी एक्टिविटी Correct. के आगे कितनी कॉस्ट आएगी वो भी वो निकाल के देंगे। अब क्वांटिटी सर्वेयर वाला ये जो प्लानिंग मैनेज इंजीनियर होता है उसका बेसिक काम होता है सारी एक्टिविटीज वो कर लेना कि स्कोप के हिसाब से कितनी आ रही है। वो एक्टिविटीज क्वांटिटी सर्वे को दे देगा, वो उसके अगेंस्ट क्वांटिटी दे देगा, वो चली जाएंगी कॉस्टिंग वाले के पास, वो उनके अगेंस्ट कॉस्ट निकाल के दे देगा, और फिर वो घूम के आ जाएंगी प्लानिंग वाले के पास, वो प्लानिंग वाला उसको उठा के प्राइमेरा में डाल देगा पूरे को चेक करने के लिए कि टोटल हमारा पर मंथ कितना पैसा आ रहा है, कितनी क्वांटिटी आ रही है, फिर वो उसको एडजस्ट करेगा हल्के हल्के अपने हिसाब से। Okay, let's move ahead. Then performing risk analysis, then refining, then establishing baseline, then communicating adopted plan to team and management. Then perform updating the schedule on regular basis, updating progress, incorporating updates or revisions, including project delays, communicating status to team and management. Then monitor, regularly analyzing the schedule based on special provisions and standard specification requirement, analyzing resource productivity, cost usage, analyze time actions। अगर कोई EOT हमने डाला है क्लाइंट को, उस हिसाब से अगर कोई अप्रूव हो गया है हमारा टाइम एक्सटेंशन तो वो भी डाल देता है उसके अंदर। Comparing different schedules to find changes to key element like planned versus actual, remaining duration as change to logical relationships. Then in the end, at the same time, he also do earned value management. Then he calculate the planned value कितनी थी, earned value कितनी थी, SBI कितना आ रहा है इस point of view से, are we near to 1 or we less than 1, generally less than 1 ही होता है। Identifying trends, developing forecast, communicating performance to team and management. Then final is modify, incorporating approved changes। अब ये अप्रूव्ड इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक चेंजेस आर नॉट अप्रूव्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर तब तक हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हालांकि वो साइट पे इंप्लीमेंट हो जाए लेकिन प्रोग्राम के अंदर हम तभी इंप्लीमेंट करेंगे व्हेन इट इज रिटन एंड अप्रूव्ड। यस, यू कैन पुट दिस चेंजेस इन द प्रोग्राम। देन परफॉर्मिंग टाइम इंपैक्ट एनालिसिस फॉर डिलेज, TIA आ गया यहाँ पर आपका। आइडेंटिफाइंग रिकवरी प्लान and communicating the new direction to team and management. Now planning, project planning, the first thing in Primavera is WBS. What is WBS? WBS is a work breakdown structure, is a product oriented grouping of project element that organize and define the total scope of the project. तो प्रोजेक्ट का टोटल स्कोप जो है वो WBS के अंदर आ जाता है विदाउट एक्टिविटीज। अभी केवल हम हाई लेवल की बात कर रहे हैं। ईच डिसेंडिंग लेवल रिप्रेजेंट एन इंक्रीजिंग डिटेल डेफिनेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स। WBS के अंदर सब WBS जैसे हम सब WBS बनाते हैं तो जितना हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे उतनी ही प्रोजेक्ट की डिटेलिंग बढ़ती चली जाएगी उस WBS के अंदर। WBS वर्क एलिमेंट्स आर डिस्क्रीट components of the total work, they represent only work and are largely independent of schedule। अब क्या होता है, शेड्यूल एक्टिविटीज का होता है, WBS का नहीं होता है, तो WBS लिंक नहीं होते आपस में, तो आपस में लिंकिंग होती है एक्टिविटीज से, पूरा इंडिपेंडेंट शेड्यूल होता है। देन इंडिपेंडेंट ऑफ शेड्यूल, सीक्वेंस, कॉस्ट, रिसोर्स एंड क्वालिटी, इससे किसी का लेना देना नहीं होता WBS का। Correct.
Hmm. Unique numerical identifier